Students, in back class we have already discussed aldehyde and ketone प्रिपरेशन हो रही थी। प्रिपरेशन हम कर चुके हैं ऑलरेडी। कीटोन जो है, कीटोन का प्रिपरेशन आपको करना है। इसके बाद प्रॉपर्टीज है, तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ कीटोन और देन प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो दो उसमें बाकी हैं, दो अभी पेंडिंग में हैं, तो दोनों लिख लेते हैं। नंबर वन फर्स्ट लिखते हैं आप यहाँ पर प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। प्रिपरेशन ऑफ कीटोन, आप ये ध्यान से सुने कि पिछली वाली वीडियो में प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड है और कुछ कीटोन भी है, और इसके बाद अब प्रिपरेशन ऑफ आपका हो रहा है कीटोन। ध्यान से देखें तो फिर आपको इसको क्लियर आएगा। यहाँ पर जैसे आप देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ कीटोन में, फर्स्ट ऑफ ऑल बाय नंबर वन बाय बेंजीन। What happens in this case? Suppose this is your benzene react with C6H5 C double bond to Cl. This is known as benzoyl chloride. Benzoyl chloride in presence of anhydrous AlCl3. One hydrogen, one chlorine combined, then it will form, ये क्या बनेगा C6H5, ये क्या बना CO, ये क्या हो गया C6H5, क्या हो गया कीटोन। It means it will form ring, then C double bond O, then ring C double bond O plus HCl. What is the name of this compound? Benzophenone. ध्यान से देखो, बेंजीन कन्वर्ट इनटू बेंजोफिनोन। बेंजीन, दिस इज बेंजीन कन्वर्ट इनटू बेंजोफिनोन। नो डाउन। कन्वर्जन आई हुई है, बेंजीन कन्वर्ट इनटू बेंजोफिनोन। ये क्या बोलते हैं? बेंजोइल क्लोराइड। तो इसको हम बोल सकते हैं, यहाँ पर जब हम देखें कि यहाँ पर बेंजोइल क्लोराइड को बोलते हैं बेंजोइलेशन रिएक्शन। ये बेंजोइलेशन, क्या बोलेंगे इसको? बेंजोइलेशन O BENZOYL, benzoylation reaction. What is benzoylation? We can write here introducing benzyl group. What is formula for benzyl group? C6H5 C single bond, C double bond. This one, this is known as benzyl group. Benzyl group into ring or in any atom in the presence of anhydrous AlCl3. Anhydrous AlCl3 is very compulsory. So this is known as benzene and benzophenone. Chapter number 12, question number 12.17 या 15 बैक साइड क्वेश्चन आंसर है कि कन्वर्ट बेंजीन इनटू बेंजोफिनोन। तो आपको इसको लर्न करना है, बेंजीन कन्वर्ट इनटू बेंजोफिनोन। सेकंड मेथड, सी फ्रॉम नाइट्राइल। इट इज फर्स्ट, सेकंड लिखो फ्रॉम नाइट्राइल। नो डाउन फ्रॉम नाइट्राइल। नंबर टू मेथड फ्रॉम नाइट्राइल। Nitrile means you know CN. Nitrile is also known as cyanide. It means we can write on CN. So what happens in this case when alkyl nitrile means
RC triple bond N plus react with RMgX. What is RMgX? Grignard reagent. C. This is known as Grignard reagent. Grignard reagent. This is also known as the organometallic compound. जिन बच्चों को मालूम है Grignard reagent is also known as the organometallic compound. MC bond is also because the metal magnesium metal है RC. तो MC bond. This is known as MC bond. This one is known as MC bond. What happens in this case? Metal kinetic positive, non-metal negative, and in this case nitrogen more electronegative than the carbon. That's why share pair of electron withdrawing towards itself, and this side it will become positive. It means it will be attacked from this side and it will be attacked from this side. See, बहुत exactly आप देख रहे हैं यहाँ पर. Then it gives, पहले क्या हुआ? CN. CN में क्या है? नाइट्रोजन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन क्या है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, मैग्नीशियम पॉजिटिव और जो है नेगेटिव है. Negative attack from this side because it become positive, and this become negative means Mg attack from this side. Then triple bond change into double bond. See, R again C, then make double bond. See, this is double bond. What happens in this case? Downside R, यार नीचे से यहाँ पर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेक डाउन देन इट बिकम डबल बॉन्ड एंड आफ्टर डबल बॉन्ड इट फॉर्म नाइट्रोजन का भी 3 इट मींस 1 2 थर्ड यहाँ से जुड़ रहा है C Mg and X. Try to understand. What is the name of this compound? Alkyl nitride. Alkyl nitride. This alkyl nitride, what is this? Grignard reagent. Then it form in this way. Then react with take 2 moles. Try to understand. Not 1 mole, 2 mole of water. Then cleavage 1 O this side and then 3 hydrogen this side. Please see. 2H2O 2 to the 4 hydrogen कितने total हुए? 4. Oxygen 2. 1 oxygen this side, 3 hydrogen this side. What is left? 1 oxygen, 1 hydrogen. एक बार आप ध्यान से देखिए. तो in this side O and H. Then we can write R C double bond O, then R plus NH3 and plus C. Magnesium valency 2. It means Mg. Then OH this side halogen. So what is this? This is a ketone. तो हम 2 मेथड पढ़ चुके. फर्स्ट क्या था? फ्रॉम बेंजीन या बेंजाइलेशन. सेकंड इज फ्रॉम द ग्रिग्नार्ड reagent. वेरी इंपॉर्टेंट. आप ये दो के दोनों अच्छी तरह से देख रहे हैं. सेकंड में आप ले सकते हैं यहाँ पर नेक्स्ट फ्रॉम डाइअल्काइल कैडमियम like R2CD plus we can write here R C double bond O Cl. See, acyl halide, acyl chloride. This is known as dialkyl cadmium, cadmiodialkyl. What happens in this case? Take twice, and in this case it forms cadmium chloride. Then 2 this side, 2 this side. 2 taken as common. Then 2 outside. Then 2 are, देखो 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है. 2 को कॉमन निकालो और 2 से मल्टीप्लाई करो. Cl कितने हुए? ट्वाइस. तो CdCl2 बन रहा है. और ये क्या बनेगा? चेक करो. C double bond O and R. C double bond O and R. This is known as ketone. Plus CdCl2. Please note down. These are the preparations of ketones. After that, we will study property of ketone and aldehyde. Very important. See,
प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो यहां सबसे पहले लिखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल प्रॉपर्टीज ओवरऑल आप देख लीजिए। फिजिकल प्रॉपर्टीज, इन द केस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज व्हाट हैपेंस, lower member of aldehyde and ketones are dissolved into water due to the formation of intermolecular hydrogen bonding. As number of carbon increases, it means molecular weight increases, solubility decreases because alkyl group are hydrophobic. जो बड़े वाले ग्रुप होंगे वो डिजॉल्व नहीं होते, छोटे वाले डिजॉल्व होंगे, क्योंकि आर ग्रुप जितना बढ़ता जाएगा उतना वो हाइड्रोफोबिक होता जाता है, तो उसमें डिजॉल्व नहीं होता। यहाँ पर ये एक पॉइंट और बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एल्डिहाइड और कीटोन को अगर कंपेयर करें तो एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन द कीटोन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सी नोट ऑन एल्डिहाइड is more reactive, aldehyde is more reactive than the ketone. This is question why. Aldehyde more reactive than the ketone, ये क्वेश्चन हो रहा है। तो ये क्वेश्चन क्यों ऐसा है, ऐसा क्या है एल्डिहाइड में? सी suppose we are writing answer in downside R, then C, C double one O, then S. C. Second one is this is ketone R, C double one O, then R. What happens in this case? Suppose 1, 2, 3, 4 electrons. Oxygen is more electronegative than the carbon. It means electrons shifting like this. Same condition takes place there. See. तो क्वेश्चन यहाँ पर है, ये जो शिफ्ट हो रहे हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, यहाँ शिफ्ट हो रहा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। ये जो है इसमें जो देख रहे हैं डोनेटिंग ग्रुप, इस में इसके 2 प्लस आई इफेक्ट है, और इन दिस केस ओनली 1 प्लस आई इफेक्ट। सी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन्स डोनेटिंग ग्रुप। यहां पर कितने हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप? 2। इसमें कितने हैं? 1। मैक्सिमम किसमें? यहां पर है। मैक्सिमम होने की वजह से यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, पॉइंट नंबर 1, और इसकी पोलैरिटी कम हो जाती है, बिकॉज इसका इफेक्ट कैंसिल हो जाता है और इसका इफेक्ट कैंसिल नहीं होता, तो मैक्सिमम पोलर होगा। एल्डिहाइड मोर पोलर होता है कंपेयर टू द कीटोन से। इन योर बुक मे बी रिटेन इलेक्ट्रोफिलिसिटी। So there are 2 reasons. First, due to the electrophilicity. Electrophilicity means, in simple language, we can say polarity. Means aldehyde is more polar than the ketone. तो क्वेश्चन है कि aldehyde is more reactive than the ketone. Why? तो आंसर इज, यहाँ पर जब लिखते हैं why, तो आपका आंसर जब लिखेंगे नंबर 1, इसको दिखाने के बाद नंबर 1, ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। नंबर 1, due to number 1 aldehyde यानी कि due to the aldehyde has more polar और आपकी बुक में क्या लिखता है? more electrophilicity, more electrophilicity than ketone, point number 1. और point number 2, in ketone steric hindrance take place. What is meaning of steric? Steric means we can say crowd, भीड़। यहाँ पर देख रहे हैं जैसे इधर से डोनेट कर रहा है, इधर से डोनेट कर रहा है, इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस इसमें नहीं है, तो लिखो नंबर 2, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस
due to the steric hindrance, due to the steric hindrance in ketone. कीटोन में स्टेरिक हिंड्रेंस है, एल्डिहाइड में स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि कीटोन इज लेस रिएक्टिव देन द एल्डिहाइड. तो क्वेश्चन, व्हाट इज क्वेश्चन? क्वेश्चन इज एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन द कीटोन. तो व्हाट इज आंसर? फर्स्ट ऑफ ऑल we will have to draw the structure aldehyde ketone, and in the case of aldehyde it is alkyl group, electron donating group from only one side and electron donating from two side in the case of ketone. alkyl दोनों अपोजिट साइड में इफेक्ट कैंसिल, और इसका इफेक्ट कैंसिल नहीं होगा तो डाइपोल मोमेंट इसका ज्यादा होगा, इसका डाइपोल मोमेंट कम होगा. सी दैट्स व्हाई वी कैन से मैक्सिमम पोलर लेस पोलर. तो दैट्स व्हाई aldehyde हैज मोर पोलर as compared to the ketone, या more electrophilicity than the ketone. Second one is due to the steric hindrance in the ketone. ये इसका एक क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम या कहीं एंट्रेंस एग्जाम में आता है, देन यू कैन राइट. इसके बाद अगर हम देखें इसमें, अब हम पढ़ते हैं इसके केमिकल प्रॉपर्टी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में आपको कहीं न कहीं मिल जाता है केमिकल प्रॉपर्टीज. बट क्वेश्चन है कि इसकी एमसीक्यू क्वेश्चन अगर आपको करना है तो पूरी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी. तो प्लीज सी, लेट अस स्टार्ट. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन. नोट डाउन केमिकल प्रॉपर्टीज. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ aldehydes and ketone. Aldehyde and ketones. C. Chemical properties of aldehyde and ketones. First is इसमें mechanism. First of all, note down mechanism. mechanism से पहले पूरी हेडिंग देख लेते हैं. C. इसमें टोटल हेडिंग नंबर 1, फर्स्ट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. फर्स्ट. नंबर 2, सेकंड हेडिंग इज nucleophilic addition reaction followed by the removal of water. We can say second one, nucleophilic addition reaction by removal of water, removal of H2O. 5 or 6 equation in this heading, and in first 4 or 5 equations, and in case of third, see, third is known as reduction of aldehyde and ketone, very important topic. Point 4, oxidation, heading oxidation, and last one is heading number 5, chemical reaction due to the presence of alpha hydrogen in the aldehyde and ketone. We can write here reaction due to the chemical reaction due to presence of alpha hydrogen atom. Very important part, ये बहुत important है. 5 स्टेप. नंबर 1, ये 5 स्टेप फिनिश, एल्डिहाइड कीटोन फिनिश. तो फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. नंबर 2, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बाय रिमूवल ऑफ वाटर. थर्ड वन इज रिडक्शन. फोर्थ वन इज ऑक्सीडेशन. फिफ्थ वन इज केमिकल रिएक्शन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन. तो ये 5 पॉइंट्स हैं जिनको आपको मेंशन करना है. स्टेप बाय स्टेप हम चलते हैं. तो नोट डाउन नंबर 1, फर्स्ट. व्हाट इज नेम ऑफ फर्स्ट? यहाँ पर clear. In this case first of all 4 point is there. See, step by step please see. First one is known as the
First one is known as the nucleophilic addition reaction. न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन यहाँ पर देखें कि फर्स्ट नंबर 1 न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल मैकेनिज्म वेरी इंपॉर्टेंट. मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विद कार्बोनिल ग्रुप. सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि इनको एल्डिहाइड और कीटोन को क्या बोलते हैं? कार्बोनिल ग्रुप. क्यों? बिकॉज कंटेनिंग कार्बन एंड ऑक्सीजन. CO ग्रुप इज नोन एज कार्बोनिल ग्रुप. इसका क्वेश्चन भी है, हम डिस्कस करेंगे भी. फिर आज यहाँ करते हैं मैकेनिज्म. फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज दिस इज एल्डिहाइड और कीटोन. दिस पार्ट में भी आर एल्डिहाइड और कीटोन. बोथ आर सेम और बोथ आर डिफरेंट. ये एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन. अब ध्यान से देखें एल्डिहाइड और कीटोन. अगर आप हम यहाँ क्वेश्चन क्रिएट करें, इसका क्या शेप होगा? क्या आंसर है आपका? Anybody? This is double bond. Due to the double bond, this is hybrid system sp2. What is meaning of sp2? sp2 means we can say like this sp2. So it means 120, 120, 120. So what is bond angle? 120. किसी भी पॉइंट पर 120 बन रहा है, इसका मतलब है वो प्लेनर है. इसको क्या बोलते हैं? प्लेनर. सी प्लेनर स्ट्रक्चर. What is structure of carbonyl group? Planar structure region due to the containing sp2. What is bond angle? 120. And this is polar in nature, you know very well, because see one time. Suppose this is carbon double bond carbon and carbon double bond carbon. See, suppose we are comparing this side, then what is difference? Too much difference. Carbon no polar, because carbon and carbon both having same electronegativity, and carbon and oxygen more electronegative. So this is polar, non-polar. See, कार्बन क्या है? कार्बन डबल बॉन्ड non-polar. और ये क्या हो रहे हैं? पोलर. सिमिलरिटीज क्या हो रही है? sp2 both having sp2. तो दिस इज डिफरेंस. डिफरेंस क्या है? ये पोलर है, ये non-polar है. यहाँ पर जो शिफ्ट करेंगे माइनस और प्लस बनाएंगे. यहाँ इस तरह की कंडीशंस नहीं हो रही है. तो ये जो है डिफरेंस है. तो अगर आप देखें, हम यहाँ पर जब आगे बढ़ते हैं, सी इन दिस केस शिफ्टिंग ड्यू टू द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन बिकम माइनस एंड कार्बन बिकम प्लस. एंड सपोज न्यूक्लियोफाइल. व्हाट इज न्यूक्लियोफाइल? न्यूक्लियोफाइल मींस इलेक्ट्रॉन रिच. Nucleophile means electron rich. So what happens in this case? Nucleophile electron rich, and what is this? This is carbon center. So this is electrophile center. This is nucleophile center. समझने की कोशिश करो. ये शिफ्ट हो रहे हैं. शिफ्ट होने के बाद यहाँ इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होगा. डिफिशियंट होने की वजह से दिस इज नोन एज द इलेक्ट्रोफाइल center. What is the name of this carbon? This carbon is known as the electrophile center, and this is known as the nucleophile center. We can write nucleophile center. Why we are saying nucleophile center? Because electron rich. यहाँ पर ज्यादा होंगे, यहाँ पर कम. अब क्या होगा? Nucleophile will attack electrophile center because electron deficient. Electron rich, what will be there? See, condition will be changed like this one. See, समझो, ये जो है प्लेनर है. दिस इज sp2. अब ये प्लेनर नहीं है, मीन्स कि ये sp2 है, प्लेनर है, मीन्स वी कैन से ये 2D है. दिस इज 2D x और y एक्सिस है. बट यहाँ पर 3 होने का मतलब टेट्राहेड्रल है. कैसे हुआ टेट्राहेड्रल? समझो इसको. यहाँ पर क्या हो जाएगा? सपोज को हम लिखते हैं NuO माइनस, एंड ये दोनों फ्री हैं. सी, यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रॉन जो थे ये जुड़ गए, यहाँ पर आके जुड़ गए. एंड फर्दर सपोज 1H पॉजिटिव, देन इट फॉर्म्स सी NuOH 1 and 1. मींस कि इट में भी A and B यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं. A B और R कुछ भी हो सकता है. R और H में भी, A और A में भी, A and A में भी,
कुछ भी यहाँ हो सकता है, आप अपने आप इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं जैसे आपकी मर्जी है। क्वेश्चन ये है कि ये क्या है, दिस इज टेट्राहेड्रल शेप, टेट्राहेड्रल शेप। पहले तुम बता दें टेट्रा मीन्स होता है 4। अभी 1 घंटे पहले, आधे घंटे पहले कोई बच्चा टेट्रा मीन्स 3 से बता रहा था, ट्राई मीन्स 3 होता है, तो टेट्रा मीन्स 4 हुआ। 4 अगर हुआ तो अब इसको आप जो देख रहे हो ये तो बोर्ड पर रखा हुआ है, अब हम कैसे आपको रख के बता सकते हैं। टेट्राहेड्रल शेप में अगर आप सही से देख सको तो जैसे ये है, ये एक साइड इधर है, एक साइड इधर है, एक इधर, ट्रायंगल बना लो और एक ट्रायंगल के ऊपर एक आप में एक स्टिक रख लो, 3 स्टिक रखो ट्रायंगल की, 1 2 3 जैसे स्टैंड होता है, वीडियो वाला जैसे स्टैंड है ट्राइपॉड में, उसके ऊपर जो मोबाइल रखा हुआ है वो टेट्राहेड्रल है। इस समय जो ये बन रहा है वीडियो, जो बन रहा है इस समय जो वीडियो बन रहा है वो टेट्राहेड्रल में है। इसका मतलब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो गया हो। गौर से देखो, मोबाइल जो रखा हो ये ऊपर रखा हो, न्यूक्लियोफाइल मोबाइल की जगह रखा हो, ये तीनों इसके ट्राइपॉड्स हैं, जिसे हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल। अगर टेट्राहेड्रल है देन व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, sp3। हर बच्चे को पता होना चाहिए ये sp3 और ये है इसका एडिशन प्रोडक्ट, एडिशन प्रोडक्ट सी। ये आपका मैकेनिज्म है। अब इसमें 4 हेडिंग है, 4 की अभी करते हैं हम, तो लिखते हैं नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। तो इसको आप नोट कीजिए फटाफट। इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट। चलो स्टूडेंट्स, इसको हो गया होगा। नेक्स्ट में हम चलते हैं सेकंड पर। सेकंड पॉइंट अब लिखते हैं स्टेप बाय स्टेप। नंबर 1 फर्स्ट रिएक्शन विद हाइड्रोजन साइनाइड। पहली हेडिंग है फर्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट हेडिंग है हाइड्रोजन साइनाइड। इन द बायोमोलिक्यूल्स आप पढ़ चुके हैं कि ग्लूकोज रिएक्ट विद हाइड्रो साइनाइड, इट फॉर्म साइनोहाइड्रिन, अगर आपको पता है तो यहाँ लिख रहे हैं, नोट डाउन। फर्स्ट नोट डाउन यहाँ पर, रिएक्शन विद हाइड्रोजन साइनाइड means we can write HCN. Try to understand. H क्या है पॉजिटिव, Cn क्या है नेगेटिव, आपको पता है। यहाँ पर क्या करते हैं, हालांकि इसके 2 स्टेप्स हैं, लेकिन मैंने आपको बता रखा था, मैं एक स्टेप आपको बताने की कोशिश करते हैं। नंबर 1 फर्स्ट, यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज दिस इज R, दिस इज ए कार्बन ग्रुप, देन सपोज HCN, then it become positive, negative, shifting negative and positive C। पॉजिटिव कहाँ जाएगा आपको पता है, यहाँ पर जो है पॉजिटिव जाएगा, इट विल बी अटैक फ्रॉम, ये कौन सा सेंटर था, न्यूक्लियोफाइल सेंटर था। ये कौन सा इलेक्ट्रोफाइल, ये कहाँ जाएगा, यहाँ पर C। क्या बना C1OH, then Cn, this is known as साइनोहाइड्रिन। अगर आप रियली जानते हो बात को प्रॉपरली, तो यहाँ पर अगर साइनाइड से अगर कुछ लिखा है आपको यहीं तक करना है, बट अगर इसका हाइड्रोलिसिस करवाते तो क्या बनता है, कार्बोनिक एसिड चेंज हो जाएगा, ट्वाइस 2H2O पॉजिटिव, देन इट बिकम यहाँ पर OH COH, ये कार्बोनिक एसिड चेंज होता है। ये आपकी जानकारी के लिए है, बाकी आपको साइनोहाइड्रिन तक करना है, बस यहीं तक। तो साइनोहाइड्रिन, अब क्वेश्चन है, कई बच्चे सोच रहे हैं कि इसका नाम कैसे लिखेंगे। जो कंपाउंड आप लेंगे, जैसे हम यहाँ ले लें मिथेनल, इथेनल, बेंजोडिहाइड, बेंजोफिनोन, प्रोपियोफिनोन, एनी काइंड्स ऑफ कंपाउंड वी कैन टेक, एल्डिहाइड या कीटोन, कुछ भी लो, जैसा भी लेना चाहो। यहाँ भी चेक करो, सपोज हम लिखते हैं यहाँ पर HC डबल बॉन्ड प्लस HCN, it's very simple, then it form HC beside OH CN, this is CN, nitrogen there. So what is the name of this compound, methanol, and this one is methanol cyanohydrin, समझो, इसका नाम है methanol cyanohydrin। नेक्स्ट हम करते हैं स्टूडेंट्स, अगर हम करते हैं इथेनल,
यहाँ पर लिखते हैं इथेनॉल। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? इथेनॉल। सेम टू सेम, अगर प्रोपेनॉल लेना है प्रोपेनॉल ले सकते हैं। सपोज हम लिखते हैं यहाँ पर प्रोपेनॉल, चेंज हो जाएंगे, दिस इज प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल, देन प्लस HCN, positive negative attack from this side, positive this side. Simple way we can write CH3, then CH3, then it form OH, then this side CN. What is the name of this compound? This is propanone. This is propanone cyanohydrin. Propanone cyanohydrin. This is propanone cyanohydrin. Very important compounds. इसको हम नोट करते हैं। अब चलते हैं हेडिंग नंबर सेकंड में चलते हैं, जिसमें हम बोलते हैं यहाँ पर नोट डाउन रिएक्शन विद, ये हो गया होगा आपका, नोट डाउन रिएक्शन विद Grignard reagent, very important, and we have already done in the chapter alcohol, chapter number 11. To see, note down reaction with Grignard reagent. This is the Grignard reagent or AMG and X. Grignard reagent, आप लोगों को पता होगा Grignard reagent जब हम यूज करते हैं अनाडस यूज करते हैं। अगर अनाडस न यूज करें तो क्या हो जाएगा? इसको प्रोटॉन मिल जाएगा और एल्केन बना देगा। तो प्रोटॉन नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि वाटर से प्रोटॉन मिल जाएगा, H पॉजिटिव मिल जाएगा। दैट्स व्हाई मोस्टली वी आर यूजिंग अनहाइड्रस कंडीशन Grignard reagent। कभी कभी आता है कि अनहाइड्रस हम क्यों लेते हैं। सी, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नंबर 1, फर्स्ट ऑफ ऑल मेक वन टेबल, वेरी इंपॉर्टेंट टेबल। फर्स्ट दिस इज मिथेनॉल, सेकंड इथेनॉल, थर्ड प्रोपेनॉल। What is the name of first compound? Methanol. This is methanol. Fix. Methanol. Name of this compound? Ethanol. This one is propanone. Propanone. There are 3 compounds. So what happens in this case? In the case of methanol, write Grignard reagent. कौन सा reagent डालना है? Note down Grignard reagent. See, this is Grignard reagent. Grignard reagent you know very well. RMgX, और साथ में क्या डालेंगे? वाटर। हमें मिलेगा 1 डिग्री अल्कोहल। बिल्कुल लर्न रखो आप, फिक्स है। फॉर्मल्डिहाइड 1 डिग्री अल्कोहल विद द हेल्प ऑफ Grignard reagent and water, सेम कंडीशन। Grignard reagent, then water, 2 डिग्री अल्कोहल, बहुत इजी, इट्स वेरी सिंपल। और थर्ड सी Grignard reagent, water, 3 डिग्री अल्कोहल। अब क्वेश्चन आया हुआ है, methanol convert into 1 degree alcohol, then we will have to write this equation. Suppose 2 degree alcohol this one, 3 degree alcohol this one. अब इसके मैकेनिज्म हम अभी लिखते हैं। तो 1 डिग्री किससे बनेगा? मिथेनॉल से। 2 डिग्री किससे बनेगा? इथेनॉल से। 3 डिग्री किससे बनेगा? प्रोपेनॉन से। तो हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। नोट डाउन फर्स्ट को लिखो स्टूडेंट्स यहाँ पर, केस ऑफ first in this case, what happens in this case? Suppose this one first, see, from methanol X double bond O, then here C plus RMgX। इसको एक बार समझ लेंगे, बहुत सिंपल हो जाएगा, समझने की बात है। मेटल है पॉजिटिव, नॉन मेटल है नेगेटिव, शिफ्टिंग माइनस इलेक्ट्रॉन, दिस वन पॉजिटिव हो जाएगा नहीं पॉजिटिव। अब ये किस पर अटैक करेगा? पॉजिटिव पर। और ये अटैक कहाँ करेगा? नेगेटिव पर।
क्या लिखते हैं, नो डाउन। नेक्स्ट में क्या लिखोगे यहाँ पर, इट विल फॉर्म हाइड्रोजन, देन O, देन Mg, देन X, दिस साइड हाइड्रोजन, वो डाउन साइड। यहाँ पर ये हो गया इट्स एन प्रोडक्ट। देन इसके बाद क्या लिखेंगे, वाटर। कहाँ से क्लीवेज हो रहा है, यहाँ से H, यहाँ से OH। तो आप देखो पहले Mg और OH और X बन रहा है C, Mg, देन OH, देन X। 2 मिनट और करते हैं स्टूडेंट्स, ओनली 2 or 3 मिनट्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा R, देन C, यहाँ पर इसको कॉपी डाउन करो, हाइड्रोजन, देन R, देन H, देन OH। जिसको ना दिख रहा ध्यान से देखो, RCH2H है और यहां पर निकल गए हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, R, देखो RCH2OH सेम है, इसमें कोई फर्क है, कोई फर्क नहीं है। तो ये जो है आपका 1 डिग्री बना। अब बनाते हैं 2 डिग्री। 2 डिग्री के लिए क्या करोगे, सपोज 2 डिग्री लेना आपको, तो आप ले लो इथेनॉल। देखो हम कैसे लेते हैं इथेनॉल, सी इथेनॉल लिख रहे हैं, नोट डाउन इथेनॉल, CH3, C डबल बॉन्ड O, फिर H प्लस R, देन Mg, फिर X। सेम कंडीशन, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, इसको नीचे लाओ, इसको यहाँ ले जाओ। देखो क्या बनता है, CH3, देन C, OMg एंड X, दिस साइड हाइड्रोजन। आपको कॉपी डाउन हो रहा है, R नीचे और यहाँ पर नेक्स्ट वाटर। आफ्टर वाटर क्लीवेज यहाँ पर 1H 1OH। इट्स वेरी सिंपल, कॉपी डाउन करो इसको, CH3 COH देन H देन R। चेक करो, इस CH के साथ OH लगा हुआ है, ये 2 डिग्री अल्कोहल है, दिस इज 2 डिग्री अल्कोहल। लास्ट वन इज 3 डिग्री अल्कोहल। तो आपको करना क्या होगा, लास्ट हम लिखते हैं इसमें स्टूडेंट, लास्ट इक्वेशन प्रोपेनोन। लास्ट हमारा क्या था, प्रोपेनोन। तो लास्ट वन इज प्रोपेनोन, सी प्रोपेनोन, दिस इज प्रोपेनोन, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 प्लस RMgX। सेम पैटर्न, प्लस माइनस, नेगेटिव, पॉजिटिव, दिस साइड क्या बनेगा, CH3 देन C OMgX देन CH3 डाउन साइड R। फर्दर हाइड्रोलिसिस, वाटर, क्लीवेज, 1 हाइड्रोजन 1 OH। तो आप देखिए वहां पर क्या बनता है, CH3 देन C डाउन साइड R, या R है Cr, यहाँ पर CH3, ये OH है, ध्यान दो OH कितने डिग्री, एक कार्बन से 3 कार्बन लगे हुए, ये भी कार्बन है, इसलिए क्या है 3 डिग्री अल्कोहल। यहाँ पर क्या बना, इसको लिख लो, Mg OH एंड देन X, दिस इज 3 डिग्री अल्कोहल। स्टूडेंट्स इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस फर्दर कि 3 रिएक्शन अभी बाकी है जो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो प्लीज आप इसको कंटिन्यू देखते रहिए, इसको सब्सक्राइब भी कीजिए और इसको जो लाइक भी कीजिए।